Read it all of sir. माइक लगाने Hello Karthik. Tell me about yourself. So my name is Karthik Pawar. I live in Birsingpur Pali district, Umaria, Madhya Pradesh. So I have done my 10th class from Kendriya Vidyalaya, Nauruzabad. So then I have done my 12th class from Macrovision Academy, Burhanpur, Madhya Pradesh. So then I have done my engineering from Indira Gandhi Engineering College, Sagar, Madhya Pradesh. So my hobby includes I love to play guitar and then sing, and for physical activity I play volleyball and table tennis. Thank you. What you done in your BTech regarding your projects or anything you have a strong commitment about any subject? Sir, for vocational training, I have done vocational training for 15 days in Madhya Pradesh Power Generation Corporation, MPEB. So thermal power plant in Birsingpur Pali itself. So then I have done major project in fax devices, in which I have used MATLAB for fax devices. Hello Karthik. Hello sir. As you said that you have done some internship type things during your academics, right? Yes sir. Engineering program, correct? And you have completed your engineering in which year? Sir, in 2016. 2016. You were just recently passed out, just 6 years ago, right? Yes. And apart from that, you have done any job related to engineering program? No sir. No. But you have some experience related to an internship, right? Yes sir. And in MP Genco or thermal power plant? Thermal power plant. Thermal power. Which thermal power plant? Sanjay Gandhi International Thermal Power Plant. Sanjay Gandhi National. Is it coal-based thermal power plant? Sir, it is coal-based. Coal-based. Okay. So do you know how many types of coal-based thermal power plant? Or you can say, if I will correctly say, do you know how many types of boiler used in power plant? No? What type of boiler you have seen there? AFBC, do you know AFBC? Atmospheric pressurized bed combustion, PFBC, CFBC. Sorry sir, I have not touched this part of my. What is the capacity of that particular thermal power plant? Sir, it has a capacity of 1340 megawatt. It should be upgraded right now, or it should be. It is It is captive thermal power plant. Yes sir. Captive thermal power plant. Do you know captive thermal power plant? You have said 1340 megawatt, correct? Yes. So do you know what is the supercritical power level in thermal power plant? Sorry, sir. You don't know. So you know we cannot produce thermal any boiler more than 500 megawatt. Any thermal power plant. That is the fact. So you will see there are 3 units. If I am, you can correct me. Yes sir. There are 3 units. You would have seen there. One for 500, another for 500, and another for 340. 60, 60, 60, 980. Actually, sir, 1980 there are megawatts. 4 units of 210 megawatt Yeah. and 1 single unit of 500 megawatt. Okay, so that 500 is supercritical thermal power plant. Yes. So control technique will be more complex there. Yes sir. And that there will be also difference in boiler, in turbine control also. Yes sir. You would have seen there AVR. AVR. Automatic voltage regulator. Well, correct. Sorry sir, I can't remember. Actually, if you have been absorbed in through MPPSC, Yes. okay. So MPPSC does not recruit the engineer for any specific department. Yes sir. All department, we can say what we can say. All department report them, Yes sir. and you will be the main chief engineer if you will be selected. Yes. So there may be possibility you would have to look for PWD,
Yes, sir. है ना, or thermal power plant or any unit which is under the state government. So under that circumstances you should have little bit knowledge of everything. Yes, sir. Yeah. What you done in this particular 6 years? Sir, after graduating from college, I have prepared for engineering services. From which college? I have done my engineering from Indira Gandhi Engineering College, Sagar, Madhya Pradesh. Okay. After that, I have prepared for engineering services from 2016 to 2019. After that, I have a medical emergency in my family, so I have to stay with my parents only. So then, from pandemic, I am living with my parents and helping them. And I also sometimes teach underprivileged students. I live in a very small village, so there are very underprivileged students and kids. So I teach them basic maths and basic science. Anything I can Tell me very basically, what is definition of transformer? So transformer is an electromagnetic device which transforms voltage and current by keeping the power same on the both sides. It has two windings which are magnetically coupled but not electrically, and it step downs or step up the voltage. Okay. What are the applications in your electronic switches of transformer? Like you have power chargers, they have also have electronic circuitries, switches circuitry. Are you know that? Sorry, sir, I am not. Okay. What you telling about choppers, DC choppers? Yes, sir. What do you know about DC choppers? So DC choppers are high frequency electronic devices which chops the voltage and hence step ups or step downs the DC voltage. What are the applications? Chopper sorry sir, I'm not recalling now. Why will we use power electronic as a subject? Instead, why we study power electronic subjects? Instead, we have analog devices. The power electronics mainly deals with the switches which can work in power signals. So it is used in power engineering, and basically these are switches so which can be controlled electronically, and that is the main application of it. What is your major projects during your BTech? So my major project was using fax devices through MATLAB. PET devices using MATLAB. Which type of PET devices you have been simulated in MATLAB? So there are certain devices Like? such as SVC, which is SVCs, and What is the difference between SVC and state pump? sorry sir, I have not gone through my major project. You said that you have 10%. Yes sir. What are the features of MATLAB you are using during your project? Which particular version you using your MATLAB during your project? Sorry sir. What is it? So Karthik ji, Yes sir. what is the meaning of your name? Karthik. कार्तिक का हिंदी बोल हाँ, तो कार्तिक का जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, दूसरों को सहारा देने वाला या ढांढस बंधाने वाला जो होता है उसे कार्तिक कहते हैं। कहाँ से कॉपी किया है आपने? कॉपी तो वैसे मैं जनरली ये आंसर यही देता हूँ कि मुरुगन भगवान का भी नाम कार्तिक होता है, मगर ये सिर्फ एक रेफरेंस हो गया, असली मीनिंग मैंने इंटरनेट से ही पढ़ा था इसका। वेरी गुड। आपका बर्थ प्लेस कटनी है, यस राइट? तो आप मुझे कटनी की कोई 5 फेमस थिंग्स के बारे में बताएंगे? फेमस, जिसके लिए कटनी बहुत फेमस है। तो एक तो कटाया घाट है जहाँ पर
जू भी है और नेचुरल चीजें आपको वहाँ देखने को मिल सकती हैं। कटनी में आप घूमने लगे सर एक ही आता है मुझे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। कटनी को मार्बल सिटी कहा जाता है, डू यू नो और नॉट? मार्बल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश यस सर। क्यों बोलते हैं? सर मार्बल की काफ़ी फैक्ट्रीज हैं सर, फैक्ट्री से इस वजह से या प्रोडक्शन होता है इस वजह से? तो प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है। कौन से कलर का मार्बल मिलता है कटनी में? तो वाइट कलर का मार्बल। व्हाइट कलर का मार्बल मिलता है। अच्छा, और कटनी तो लाइमस्टोन के लिए भी बहुत फेमस है, यस सर। है ना? तो सीमेंट सिटी भी बोला जाता है Yes. मध्य प्रदेश की। यस सर। तो आप मुझे लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताइए, केमिकल फॉर्मूला। CaCO3 करेक्ट बोल रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। यस सर। चलिए, कोई दो इंडस्ट्री के नाम बताइए जो लाइमस्टोन पे बेस्ड हो, सीमेंट इंडस्ट्री जो कटनी में एस्टैब्लिश्ड हो। सर दो इंडस्ट्री का, एक तो सीमेंट जो ACC के द्वारा बनाई गई सीमेंट फैक्ट्री। उसका नाम क्या है? ACC का, डायरेक्ट ACC रखा हुआ है। चलिए, और तो सर ऐश ब्रिक्स बनाने के काम आती है, उसकी भी बहुत सारे वहाँ पे फैक्ट्री लगे हुए हैं। नहीं, ऐश ब्रिक नहीं, मैंने आपसे पूछा सीमेंट फैक्ट्री, आप इंडस्ट्री की बात करें। Yes, sir. हाँ, तो एक तो आपने ACC बताया, चलिए ठीक है, ACC बनाती है सीमेंट, करेक्ट है। और कौन सी इंडस्ट्री है जो कटनी में एस्टैब्लिश्ड है? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कटनी को, तो कटनी में आपको देखने को मिलेगा अशोक का एक इंस्क्रिप्शन। सम्राट अशोक को जानते हैं, नाम सुना है आपने, है ना? उनका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है कटनी में, बता पाएंगे कौन सा है? ठीक है। आपने अनडिवाइडेड इंडिया का सेंटर पॉइंट के बारे में कभी सुना हो? कटनी में एक प्लेस है जहां पर भारत का जो है सेंटर माना गया है। प्लेस का नाम बता पाएंगे? आपका बर्थ हुआ है अक्टूबर में ना? Yes, sir. बर्थ मंथ आपका अक्टूबर है। Yes, sir. अभी अक्टूबर की मुझे कोई दो न्यूज़ बता सकते हैं जो MP से रिलेटेड काफी हाईलाइटेड न्यूज़ रही है? जी, थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं आ रहा। व्हाट इज योर रोल नंबर? In this यस, फॉर हाँ, 125245। ठीक है। आप इसको नंबर्स में बोल सकते हैं, इन थाउजेंड्स और लैक्स? 1,24,525। एक बार फिर से चेक करिए, सोचिए एक बार, आराम से, कोई जल्दी नहीं। आप अपना रोल नंबर फिर से बोलिए, फिर 1,25,240। पिछली बार आपने 125 बोल दिया था, इसमें 24 बोला, 1,24,000। चलिए, बीरसिंहपुर तो आपने बता ही दिया, बहुत फेमस है। तो जैसा आप अभी बता रहे थे सतपुरा थर्मल पावर प्लांट के बारे में, यही बताया आप? संजय गांधी। संजय गांधी, Yes. है ना? ये संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट जो है, इसमें कोल कहाँ से आता है, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं कोल? सर लोकल जो हमारे यहाँ पे जितने SCCL है, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, वहाँ से ही कोल आता है। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ बीरसिंहपुर वाली, वहाँ पे 3 खदानें हैं, वहाँ से भी कोल आता है। प्लस सोहागपुर जो एरिया है जहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग होती है, वहाँ से भी कोल आता है। आपने इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, राइट? कब एस्टेब्लिश हुआ ये कॉलेज? सर ये 1984 में 1984 में। ठीक है, किससे एफिलिएटेड है AIC आपका कॉलेज? किससे एफिलिएटेड है, कौन सी यूनिवर्सिटी? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आपने अपनी हॉबी में लिखा है गिटार बजाना, गाना गाना, टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल, जैसा आपने मेंशन भी किया था अभी, ठीक है? आप मुझे बता सकते हैं गिटार में कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं? 6 स्ट्रिंग्स होती है। वेरी गुड। क्या सभी स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनका टेंशन इक्वल होता है? सभी स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनमें टेंशन इक्वल होता है?
तो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल टेंशन हो, वो हम अपने हिसाब से कौन सी धुन हम बजाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम उसको टाइट या ढीला कर सकते हैं। आप मुझे ये बता पाएंगे कि जो आप टेबल टेनिस प्ले करते हैं उसमें जो बॉल होती है उसका डाया कितना होता है? 40 mm डायमीटर होता है उसका। और वो किसकी बनी होती है, मटेरियल कौन सा होता है? सर जनरली हम जनरली प्लास्टिक की बनी हुई होती है सर। श्योर है? यस सर। वॉलीबॉल भी खेलते हैं आप? यस सर। नेट की हाइट क्या होती है? सर नेट की हाइट मेंस के लिए अगर देखा जाए तो 2.44 मीटर होती है और विमेंस के लिए देखा जाए तो 2.40 मीटर होती है। चलिए ये क्वेश्चन करें, जैसे अपना इंटरव्यू हिंदी में चल रहा था और अभी एमपी सरकार का कहना है कि टेक्निकल एजुकेशन को भी हिंदी में करना था। सॉरी सर। टेक्निकल जो अपना एजुकेशन है यस सर। उसको हिंदी में करने का लिए, यस सर। तो उसके लिए आपकी राय क्या है कि टेक्निकल एजुकेशन हिंदी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? टेक्निकल एजुकेशन हमेशा से हम इंग्लिश में पढ़ते आए हैं, मगर मेरा जो देखा मैंने जो अपने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया था, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे वो हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर हिंदी मीडियम होना चाहिए, जैसे सर अभी मेडिकल एजुकेशन को भी हिंदी में कर दिया गया है, उसी प्रकार से टेक्निकल एजुकेशन को भी हिंदी में कर देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हुए आते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। और सर और अगर आप मान लीजिए जैसे आपने हिंदी में कर दिया है, आपका नॉर्थ इंडिया जो है वो तो हिंदी में मिल जाएंगे आपको, अगर यही डिमांड साउथ इंडिया के किसी स्टेट ने की कि मुझे अब अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स है उसको टेक्निकल एजुकेशन जो है वो तमिल में देना है, कोई बोल रहा है तेलुगु में देना है, कोई कन्नड़ की बात कर रहा है, तो फिर अब आप ये बताइए कि ये बहुत ज़्यादा मिसमैच नहीं हो जाएगा? जैसे आप अगर किसी साउथ इंडियन स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो वो तमिल में आपको एक्सप्लेन कर रहा है, आप हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड एक प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन है। मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी है जर्मनी की, अब जर्मनी में इंग्लिश में हो रहा था सारा काम, आपने अपनी ग्रेजुएशन में जो है या इंजीनियरिंग हिंदी में कर, अब आप बताइए कि कैसे आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे या अडॉप्ट कर पाएंगे उस टेक्नोलॉजी को? सर टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं वो तो आप हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, हम उसकी भाषा को सरल करने के लिए उसमें उसको हिंदी में या तमिल या तेलुगु में कर सकते हैं। तो हमेशा टेक्निकल जो वर्ड्स होंगे जैसे ट्रांसफार्मर है या एक डीसी मोटर है या यूनिवर्सल मोटर है, उसको हम हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। सिर्फ जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है अगर उसको हम हिंदी में रखते हैं, जैसे कि जो शिक्षक है कॉलेज में वो हिंदी में पढ़ाना चालू करें, तो मुझे लगता है कि वो कोरिलेट हो जाएगा। जैसे अभी आपने बात करी कि आपके घर में भी कुछ मेडिकल कंडीशंस थी जिस कारण कि आपको 2 साल आपके फादर मदर के साथ मिला, यही कभी आप एमपीपीएससी एज ए अधिकारी बनते हैं और ऐसी मेडिकल कंडीशन आती है फिर आप जॉब छोड़ देंगे? नो सर, एक्चुअली मेडिकल इमरजेंसी अगर मैं बताना चाहूँगा तो फादर ऑल इंडिया में ही है मेरे जी, तो उनका एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया लेफ्ट साइड। तो इन डेट केस तो फिर वापस आप फादर मदर के पास जाएंगे अपनी जॉब के लिए ही कंटिन्यू करेंगे? हाँ, मैं जॉब के लिए जाऊँगा क्योंकि अभी मेरा जो छोटा भाई है उसका ग्रेजुएशन हो गया है और वो मेरे पापा को अभी अगले 2 साल और दे सकता है ताकि वो पापा अच्छे से ठीक हो जाए, तो मैं सर जॉब करूँगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रही थोड़ा सा आप अभी बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या था और आपको क्या लग रहा है कि आपकी कमी क्या है? तो मेरी थोड़ा बर्थ प्लेस को लेके क्योंकि सिर्फ बर्थ ही हुआ रहा तो मैं हमेशा बिल्कुल से, मगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। उमरिया भी तो था। आपने एक बात बोला था अभी यहाँ पे कि हम जो टेक्निकल टर्म है उसको इंग्लिश में रखेंगे एंड बाकी सब हिंदी में रखेंगे, तो क्या वेलोसिटी को हिंदी में कुछ बोलते हैं? वेलोसिटी हिंदी में बोलते हैं वेग, है ना? वेग पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? धनात्मक, धनात्मक। और नेगेटिव को everything can be converted into Hindi. That's not we can't say it is not possible, है ना? अब अभी हमने डिमांड किया कि हमें सारी टेक्निकल एजुकेशन मिक्स चाहिए,
आफ्टर सम टाइम बोलेंगे कि हमें वेलोसिटी समझ में नहीं आता है, उसको वेग में कन्वर्ट करो, एक्सेलरेशन को त्वरण बोल दो आप, है ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोल दो, हमें ये डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आता है, वी अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, यहाँ से वहाँ तक का विस्थापन, देन इन दैट केस व्हाट विल यू डू, व्हाट कैन यू से कि ऐसा होना चाहिए क्या? और इसके अलावा आपको हम जैसे आपको कहा था कि आप जब इंट्रोड्यूस अपने आप को करा रहे हैं तो आपने जैसे अपने बारे में बात करी, तो जैसे भी मैं आपको पहले भी सेशन में टेक्निकल सेशन उसमें गया था बात कर रहा हूँ, आपने कहीं पर भी ये नहीं दिया है कि मैं किस टॉपिक पे कॉन्फिडेंट हूँ टेक्निकल टॉपिक के ऊपर, आपने अपने आप को खुला छोड़ दिया है टेक्निकल एक्सपर्ट के सामने। मेरे पास 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट के अंदर करीब करीब हर एक के अंदर 40 टॉपिक है, 400 टॉपिक से मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपने बोला कि आपने इंटर्नशिप किया, तो इंटर्नशिप करने का देखो, व्हाई शुड बी सिलेक्टिव इन अवर ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप कितने सीरियस हैं, है ना, सीरियसनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि आपको नहीं पता है कि वहाँ पे कितने टाइप के बॉयलर होते हैं, 15 दिन में काफ़ी होता है ना, 15 डेज काफ़ी होता है। मैं खुद पावर प्लांट में काम किया हूँ एज ए इंजीनियर, और मैंने खुद कमिश्निंग इंजीनियर रहा हूँ वहाँ पे। हमको एक दिन का टास्क मिला था पूरे पावर प्लांट के बारे में जानने का, और मैं आपको बता रहा हूँ मैंने वहाँ पे एक दिन में कितनी इंफॉर्मेशन जुटाया था। यहाँ पे कितने टाइप के बॉयलर्स हैं, कितने टाइप के टर्बाइन्स हैं, एवीआर कैसे कनेक्टेड है, और बॉयलर के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। अगली बार आप जब भी कंटिन्यू करें तो ये जो स्कोप्स पॉइंट्स हैं आपको जैसे बताया कि आपकी, क्योंकि आपने 4 साल आपकी 16 to 20 आई थिंक आपकी बीटेक है कि 16 में आपकी बीटेक हो चुकी थी। Yes, sir. 12 तो देखिए आपने अपने आप को कभी भी ये नहीं प्रूव कराया कि 16 to 20 में आपने कुछ करा है। ये जो बहुत बड़ा गैप है, हाँ ठीक है, हम मान सकते हैं कि आपने कोई पढ़ाई कर रहे होंगे, मगर इसको आप प्रूफ नहीं कर पाए। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉलेज। जो आपको 15 डेज का इंटर्नशिप था, दैट इज बेसिकली फॉर सपोर्टिंग योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिकुलम, है ना। और इसके बाद आपसे जैसे मेजर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, ये इसलिए पूछा गया कि आपको जैसा आप फिसल रहे थे कुछ, तो आपको सपोर्ट करने के लिए कहा गया था। पहली चीज, आपका एक, जब भी आप बात करें तो मैंने आपका एक सब्जेक्ट चूज करें, ऐसा बताएं कि इसमें करो, कहीं पर भी आपको इंट्रोड्यूस सर में कहें कि ये मैंने इस पर काम करा है, ताकि कहीं पे सरसरी उसे कुछ समझ में आ जाए कि दैट्स योर की पॉइंट, यहाँ से वो सामने पूछ सकता है, ताकि आपको इनिशियली कॉन्फिडेंस मिले। आपने अपनी मेजर प्रोजेक्ट की फाइल को उठा के नहीं देखी एक बार, तो प्लीज इसको खोल के देखें, एक बार पढ़ें। हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन ना पूछे, मगर आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, ये जो आपका इंटरव्यू सेशन है, इंटरव्यू सेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपका नॉलेज चेक कर रहा है, सामने वाला आपसे ये समझना चाहता है कि बंदा कितना सीरियस है अपनी लाइफ में, इसको कितनी जो चीज़ करी है उसकी कितनी माइन्यूट डिटेल तक मालूम है, और कितना लॉन्ग इसके पास में मेमोरी लेवल है इसका। दूसरा, आपने आपको कम ना समझे, है ना। कुछ लोग होते हैं बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग डेवलप करते हैं ओवर द टाइम। आपको डेवलप करने की जरूरत है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं है, बट आपको बहुत डेवलप करने की जरूरत है। तो धीरे धीरे और सेशन ठीक करेंगे। तो पहले अपने आप को टेक्निकल, जैसा आपका सर ने बहुत सारे सवाल दिए, तो नॉन टेक्निकल का आपका पार्ट 70 to 50% ठीक था, मगर टेक्निकल में हम आपको 100 में से मार्क्स देना चाहते हैं 10 to 5 मार्क्स इस साल। यू शुड बी इम्प्रूव योर टेक्निकल पार्ट। अब जब बात है कौन सा सब्जेक्ट करें, तो सबसे पहले तो अपने जो मैं बोला ना मेजर प्रोजेक्ट्स और जो आपके अदर इंटर्नशिप वगैरह उसको ठीक करें, फिर धीरे धीरे एक करके सब्जेक्ट चालू करें। क्योंकि जैसा आपको मैंने ट्रांसफॉर्मर पूछा, तो ट्रांसफॉर्मर से सीधे मैं आपको कन्वर्टर सर्किट लेकर आया, तो ये बहुत माइनर सवाल है। एज मैं कह चुका हूँ कि आपका नॉलेज चेक हो चुका है एमपीपीएससी के प्रीवियस पेपर्स के अंदर। दे विल बी थिंकिंग कि आपका कितना जल्दी जवाब सामने से आ रहा है। इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। और जब भी कोई सवाल के जवाब को बनाए तो ऐसा बनाए कि सामने वाला को ऐसा न लगे कि आप सामने वाले चेयर को बेवकूफ समझे, ठीक है। जो मतलब जैसे आपने कोई भी दे तो समझे कि आपको कहीं उलझा नहीं रहा, लूप में नहीं ले रहा। सर जैसे आपने हिंदी के बारे में जवाब दिया,
हिंदी इंग्लिश टेक्निकल, ये सवाल ऐसे होते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग को समझाने की कोशिश करते हो। कहीं ना कहीं आपको जो पॉलिटिकली जो सवाल होते हैं जहाँ पर कि सामने कॉन्शियस चेक करना चाहते हैं कि पॉलिटिकली कितना करेक्ट हो सकता है बंदा, उसको चेक करना चाह रहे हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब ध्यान दें, क्योंकि आपने जो सवाल का जवाब दिया उससे ऐसा लग रहा था कि एमपीपीएससी के टेक्निकल इंटरव्यू में नहीं बैठे आप। ठीक है, ट्राई इम्प्रूव करें, बाकी धीरे धीरे सब होता जाएगा। ठीक है, एक आप थोड़ा सा आई कांटेक्ट जो है वो सबसे रखिएगा। एक दो बार जब आप कुछ सोच रहे थे तो आपने शायद थोड़ा ऊपर देखा था इनिशियल के स्टार्टिंग में। एक वो, दूसरा हैंड मूवमेंट ज़्यादा मत रखना, थोड़ा सा स्टेबल। हाँ अभी यहाँ ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं आपको कि आप है ना थोड़ा सा मुझे ऐसा रिलैक्स रहो हमेशा, इंटरव्यूअर आपको खाएगा नहीं है ना, वो सिर्फ आपको जज करेगा कि आप कितना नॉलेजेबल हो और आप उनके लायक हो कि नहीं हो। तो आपको ये प्रूव करना है कि आप उनके लायक हो। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। यस, यू शुड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस दिखा दो, आधी जंग में जीत जाता है। ठीक है, एक्चुअली सर आज मतलब आज ही पता चला और देखिए प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही चीज छूट गई। हाँ, हाँ, और कुछ रिमार्क वगैरह और देना। आज थोड़ा सा अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करें। हम बात करेंगे इसके बारे में सेशंस में आगे कि कैसे इसको हम बना सकते हैं, क्या क्या पॉइंट इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे वर्डिंग को हम टचअप करेंगे सामने वाला इसको। क्योंकि पहला सवाल तो यही पूछा जाता है इंट्रोड्यूस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये इस परिपत्र में नहीं होती है और कई चीज़ नहीं लिखी आपने। तो हम कैसे हम इसमें गेट के एग्जाम के बारे में आपने लिखा है कि 2 गेट के एग्जाम नहीं दिया आपने इसके अंदर। वो लिख लें। सर, गेट का स्कोर है आपके पास में, हाँ, तो यू शुड बी, क्योंकि सभी तो सामने वाले को मालूम पड़ेगा कि कितने आप स्ट्रॉन्ग है आपके टेक्निकल्स के अंदर। सर आप मैं अपने एग्जाम्स जो जो क्लियर हुए जो पिछले वो लिख सकता हूँ, जैसे गेट, सिर्फ गेट के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब लिखा है आपका इसके ना अनुप्रवाह पत्र करने के यहाँ गेट लिख सकते हो, मगर ध्यान रखना जब गेट लिखोगे तो गेट जैसे सवाल पूछेगा। ठीक है, ठीक है, फिर वो आपको इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक है, यस सर। और एक सब्जेक्ट तैयार करके रखना कि जहाँ कहीं से भी आपसे पूछा जाए आप बोलो। ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट का अच्छे से करिए, हाँ, क्योंकि वो इंटरव्यूअर की नज़र होती है उस पर। इफ यू आर फ्रेशर, उसके बाद कोई चाला नहीं है, या हाँ। तो एक चीज पूछ सकता है, या तो सब्जेक्ट पे जाएगा या फिर आपके प्रोजेक्ट सेंटर में हाँ। कोई एक जगह दो उसको स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने बोल दिया कि हाँ मुझे आता है, तो उसी में क्वेश्चन बनते जाएगा, उसी में आपका टाइम निकल जाएगा। और जहाँ आपने उनका टाइम निकाल दिया तो आपके 80-90% चांस खत्म हो जाते, मतलब हो जाते हैं सिलेक्शन में। उनको आपको एंगेज करके रखना है अपने आंसर से, सिंपल। तो उसके जो प्रोजेक्ट के जैसे आपको थर्मल पावर प्लांट है, थोड़े से स्टडी कर लो, है ना। स्टडी के पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कितना सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, किस किस लेवल पे क्या टेम्परेचर होता है, क्या प्रेशर रहेगा, बॉयलर पे क्या प्रेशर आएगा, बॉयलर के बाद टरबाइन पे क्या प्रेशर आता है, फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल होता है, पावर कैसे कंट्रोल होता है, मैक्सिमम जनरेटिंग वोल्टेज क्या है। दीज आर दी बेसिक क्वेश्चंस, है ना। कितना आप जनरेट कर सकते हो, इंसुलेशन लेवल क्या होता है। माइक को भी रखिए साइड में। इधर ही तैयारी होगी। ठीक है कार्तिक? है ना, उससे डिसअपॉइंट नहीं होना है ना। जो फीडबैक जो मिला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि आप नॉन टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करो, टेक्निकल में पॉइंट इंप्रूव करो, बट जो जैसा सर ने बताया वो पॉइंट्स ध्यान रखो। जो आंसर आपने किया आपको खुद को पता चल गया कि अप टू मार्क नहीं थे आप अपने लेवल पे, तो उसको धीरे धीरे रेक्टिफाई करना।